وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً صدق الله العظيم. تلاوت کلام رحمان کے بعد حمدیہ اور عارفانہ کلام کے 2-3 اشعار، اس کے بعد پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. صلی علی نبینا تسبیحیں پڑھیا کر اللہ ساواں دی تسبیحیں پڑھیا کر اللہ اسم اللہ دا غافل بندیاں جپیا کر بس تو تسبیحیں پڑھیا کر اللہ اللہ ساواں دی تسبیحیں پڑھیا کر اللہ پچھلی راتی رویا کر تو منگیا کر اندروہوں میں ایک اتروگی کافی پچھلی راتی گیڑیا کر تو نین والے کو ساواں دی تسبیحیں پڑھیا کر اللہ ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ کردے تینوں سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا ساواں دی تسبیحیں پڑھیا کر اللہ
نایو رہندا عرشاں نا وچ ور ٹھکانے نایو رہندا مندر مسیتی نا رہندا بت خانے اپنے یار دے جلویاں وچ میں سنیا اودی جو ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ اللہ پاکستان بھرپور آواز میں جواب تو دیجئے پاکستان وطن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ایک مرتبہ بلند آواز سے جواب دیجئے پاکستان میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے جے سی ایل اور جہلم فورم کی پوری ٹیم کے لیے آپ تمامی احباب جن کے لیے آج کا یہ خوبصورت پنڈال سجایا گیا ہے اور جے سی ایل پریمیم کا سیزن 7 انعقاد پذیر ہو رہا ہے ذرا زندہ دلی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے باواد بلند تالیاں پرجوش انداز میں بجائیے انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیئرمین جے سی ایل محترم راجہ طاہر رضا صاحب جنہوں نے نومبر 2015 میں اس پورے سسٹم کا پودا لگایا اور آج ایک تناور درخت کی صورت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ جے سی ایل آج کی اس خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے نظروں کے سامنے ہے اور ہم آج جے سی ایل پریمیئر سیزن 7 کی اوپننگ سرمنی کے اس پروگرام میں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ اس شخصیت کے لیے بھرپور تالیوں سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے جو کہ ہر طرح کی پرابلمز فیملی کے اندر بھی ہوتی ہیں سب لوگ آگاہ ہیں اس بات سے ہر بندے کی پریکٹیکل لائف ہے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر سال جہنم کے گراؤنڈز کو ینگسٹرز کے لیے آباد کرنے کے لیے اور خوبصورت یہ ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرنے کے لیے یو کے سے ہر سال ہر صورتحال میں پاکستان تشریف لاتے ہیں بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے آج کی اس خوبصورت تقریب میں راجہ طاہر رضا چیئرمین
JCL प्रीमियर। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत मैनेजिंग डायरेक्टर JCL मोहतरम चौधरी मतलूब गुज्जर साहिब, जिनके साहबजादगान आज की इस तकरीब में मौजूद हैं और वह खुद गालिबन सोशल मीडिया के ज़रिए भी आज की इस ओपनिंग सेरेमनी की तकरीब में शरीक हैं। उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। इंतहाई नफीस किस्म की शख्सियत मोहतरम मकाम जनाब जमील भट्टी साहिब, प्रेसिडेंट JCL प्रीमियर और जेहलम फोरम के भी इंतहाई अहम रुकन आज की इस तकरीब सईद में मौजूद हैं। आपके लिए भी पुरजोर तालियां होनी चाहिए। मेरे दाएं जानब स्टेज पर रौनक अब्दो हैं मोहतरम राजा फरशाद क्यानी साहिब, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं JCL प्रीमियर। उनके लिए भी तालियां बजा दें। ये बनती हैं इन अहबाब के लिए तालियां, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर साल ये सारा जो प्रोग्राम इनकाद पजीर होता है, इनका सेहरा इन अहबाब के सर जाता है। इनके बाद मोहतरम गुलाम रसूल साहिब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं JCL के लिए, आपके लिए तालियां। उनके बाद मोहतरम मियां शाहिद फरीद साहिब, मैनेजिंग कोऑर्डिनेटर हैं JCL के लिए, उनके लिए तालियां बजाएंगी। उनके बाद मोहतरम सिकंदर नवाज साहिब, पैटर्न इन चीफ JCL, उनके लिए भी तालियां। और मोहतरम खुबैब भट्ट साहिब, जो कि CEO हैं JCL प्रीमियर के, उनके लिए भी तालियां। और भी जितने भी अहबाब जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जैसे भी अपने काविशें की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन्होंने पाकिस्तान के नौजवानान के लिए एक खूबसूरत और प्रैक्टिकल फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको मसरूफ़ रखने के लिए, जहाँ पर दीगर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ हैं जिनसे लोग बेरारबी का शिकार होते हैं, उनको ऐसी पुरअसर और मुअस्सर किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस किया है। और मैं समझता हूँ बहुत ही आसान इक़दाम है कि जिस कौम के फिर खेल के मैदान आबाद होते हैं, उनके हॉस्पिटल्स अस्पताल वीरान होते हैं। अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। सामीन मुकर्रम, जहाँ पर 6 सीज़न गुजर चुके हैं और आज ये वक्त आन पहुँचा है कि JCL प्रीमियर का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज हो चुका है और आज अभी इंशाल्लाह हम सुनेंगे प्रॉपर ऑफिशियल सॉन्ग JCL का। उसके हवाले से ब्रीफिंग देने के लिए और अपने मेहमानान गिरामी को वेलकम करने के लिए माइक पर मुल्तमिस हूँ मोहतरम राजा फरशाद कैनी साहिब, मीडिया कोऑर्डिनेटर JCL, आप तशरीफ लाएंगे और जो ऑफिशियल सॉन्ग है JCL का उसके हवाले से ब्रीफिंग देंगे और मेहमानान गिरामी को वेलकम भी करेंगे। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए राजा फरशाद कैनी साहब। बहुत शुक्रिया। मैं जेलम फोरम की तरफ से और JCL की तमाम टीम की तरफ से अपने आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हर साल इसी तरह ये रौनकें लगती हैं। JCL अपना हर साल एक नया एडिशन, नया सीज़न एक पेश करता है। इसी तरह आज हम यहाँ पर JCL सीज़न 7 की ओपनिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं और मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कर सकता हूँ कि हमारा सफ़र ये 2015 से शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसका जो है सीज़न 7 जो है उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। आज सीज़न 7 थोड़ा सा मुनफरिद इसलिए भी है कि सीज़न 7 में बहुत सी ऐसी डिफरेंट गेम्स हमने नई एंटर की हैं कि हमने सोचा कि सिर्फ क्रिकेट के मैदान में क्यों लोगों के साथ हम इतना कोऑपरेट करें, हम बाकी स्पोर्ट्स को भी लेकर आगे चलते हैं। तो हमारे चेयरमैन जनाब राजा ताहिर साहब ने ये फैसला किया कि इस दफ़ा हमने नई गेम्स ऐड करनी है, जिसमें हमने फुटबॉल भी ऐड की और जिसमें हमने हॉकी भी ऐड की है और जिसमें हमने बैडमिंटन भी ऐड की है। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है, मेरा ख्याल इस पर ज़रूर तालियां बजनी चाहिए आप लोगों की। बहुत शुक्रिया। तो इस दफ़ा सबसे बड़ी चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि इस दफ़ा हमने जेलम फोरम स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया है, जिसके मेंबरान की पिक्चर्स आपके सामने आवेज़ा हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम मेंबर हैं जो जेलम फोरम स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर हैं और इसी स्पोर्ट्स बोर्ड की अम्ब्रेला के नीचे इंशाल्लाह ये तमाम जो JFL, JHL और JCL के जितने भी मैचेस हैं
ये इसी टीम के अम्ब्रेला के अंडर होंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह हमने क्रिकेट के मैदान में एक महारत हासिल की है, इसी तरह फुटबॉल और हॉकी के मैदान में भी इंशाल्लाह हम इन बच्चों को लेकर आगे चलेंगे। सीज़न 7 की एक और खुशनसीबी ये है कि सीज़न 7 में हमने ये इस बात की कमी महसूस की कि इतने बड़ी लीग, इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो इसका एक ऑफिशियल सॉन्ग होना चाहिए जो एक इसका नुमाइंदगी करे और जो लोगों को ग्राउंड में बताए कि JCL क्या है और हम किस किस मैदान में किस किस अंदाज में आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और इसके पीछे शब रोज़ की मेहनत दरकार है। इसके लिए पहले हमने सॉन्ग लिखा, लिखने के बाद उसकी तर्ज बनाई, तर्ज बनाने के बाद 10 घंटे की तवील जो है मेहनत के बाद हमने इसको कंपोज किया और कंपोज कर आज ये सॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली रिलीज़ करने के लिए तैयार है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये सॉन्ग पसंद आए तो आपने अपनी तालियों से इस सॉन्ग का जो है वो आपने जवाब देना है, आपकी जो शमूलियत है वो आपने साथ रखनी है। और हमारे जो यंग लोग जहाँ पे जितने मेरे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी अगर इस गाने पे झूमना चाहें तो आप झूम भी सकते हैं। ये एक प्रॉपर एंथम हमने बनाया है JCL के लिए। और मैं चाहूँगा कि जो मेरे साउंड कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मैं चाहूँगा कि आप इस गाने को स्टार्ट करें और आप लोग भी इस गाने को सुनें। खेलेगा जेहलम, देखेगा पाकिस्तान। को पाने की तू आग लगा के खेल, जेहलम के टैलेंट से जरा आंख मिला के खेल। ख्वाबों को पाने की तू आग लगा के खेल, जेहलम के टैलेंट से जरा आंख मिला के खेल। ताकत है तेरा जोश, जज्बे को बढ़ा के खेल। हम चैलेंज करते हैं मैदान में आके खेल। आ मिल के खेले ऑडियंस, यह JCL प्रीमियर। आ मिल के खेले ऑडियंस, यह JCL प्रीमियर। यह JCL प्रीमियर, यह JCL प्रीमियर, यह JCL प्रीमियर। है जीत इसी में गुम, ये कैच न जाए छूट। किस्मत की बाजी है, किस्मत न जाए रूट। है जीत इसी में गुम, ये कैच न जाए छूट। किस्मत की बाजी है, किस्मत न जाए रूट। जो तुझसे कहते हैं हारा है खिलाड़ी तू, क्यों डरता है इनसे, कहते हैं सारे झूठ। आ मिल के खेले ऑडियंस, यह JCL प्रीमियर। आ मिल के खेले ऑडियंस, यह JCL प्रीमियर। यह JCL प्रीमियर, यह JCL प्रीमियर, यह JCL प्रीमियर। पुरअज़्म खिलाड़ी है सब JCL की शान। हर समत उठा है शोर, है इनकी अलग पहचान। पुरअज़्म खिलाड़ी है सब JCL की शान। हर समत उठा है शोर, है इनकी अलग पहचान। छक्कों पे लगे छक्के, उड़ती हुई दिखते हैं। खेलेगा जेहलम तो देखेगा पाकिस्तान। आ मिल के खेले ऑडियंस, यह JCL प्रीमियर। आ मिल के खेले ऑडियंस, यह JCL प्रीमियर। यह JCL प्रीमियर, यह JCL प्रीमियर, यह JCL प्रीमियर।
محکم ہے جیت تیری تقدیر سب مل کے لگاؤ تم ایک نعرہ تکبیر کر اس پہ یقین محکم ہے جیت تیری تقدیر سینے پہ سجا میڈل ہے ایک ہی تیرا گول فٹ بال اور ہاکی سے میدان کا سینہ تیر آ مل کے کھیلے آڈیئنس یہ JCL پریمیئر آ مل کے کھیلے آڈیئنس یہ JCL پریمیئر یہ JCL پریمیئر یہ JCL پریمیئر یہ JCL پریمیئر خوابوں کو پانے کی تو آگ لگا کے کھیل جہلم کے ٹیلنٹ سے ذرا آنکھ ملا کے کھیل خوابوں کو پانے کی تو آگ لگا کے کھیل جہلم کے ٹیلنٹ سے ذرا آنکھ ملا کے کھیل طاقت ہے تیرا جوش جذبے کو بڑھا کے کھیل ہم چیلنج کرتے ہیں میدان میں آ کے کھیل آ مل کے کھیلے آڈیئنس یہ JCL پریمیئر آ مل کے کھیلے آڈیئنس یہ JCL پریمیئر یہ JCL پریمیئر یہ JCL پریمیئر یہ JCL پریمیئر میرا خیال ہے کہ آپ کی تالیاں ہی کافی ہیں اس گانے کی سنجیدگی کے لیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اس سانگ کے پیچھے ایک مہینے کی محنت ہے. یہ جو اس کے رائٹر ہیں ابرار جنجوعہ صاحب وہ بھی جہلم سے بلانگ کرتے ہیں اور جو اس کے سنگر ہیں عمر خیالی صاحب وہ بھی جہلم سے بلانگ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ اس ساری ٹیم جو گانے کی ٹیم ہے اس میں بھی ہمارے جہلم کی کنٹریبیوشن ہے اور ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ جہلم سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے ساتھ میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں. اسپیشلی ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں ہارون کٹانہ صاحب, میں ان کو آپ سب کی موجودگی میں بھرپور مبارکباد دینا چاہتا ہوں. مانچسٹر باڈی کے ہمارے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں یہ اس دفعہ اور ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اپنے آج کی اس پروگرام میں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جہلم چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ جناب حاجی بٹ صاحب بھی موجود ہیں. میں ان کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے درمیان تشریف لے کر آئے. ہمارے ساتھ گجر یوتھ فورم کے صدر بھی موجود ہیں, ہم ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ جناب غلام احمد زمر صاحب, جناب ڈاکٹر اسمت جاوید ملک صاحب, ملک غلام رسول صاحب اور ہماری تمام ٹیم جو اس وقت ہمارے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے, ان سب کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آج کی اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ باتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. کچھ یہاں پر لوگ آ کر آپ سے ایڈریس بھی کریں گے, لیکن آج کی سیرمنی کا اور ہم سب کا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بھرپور طریقے سے سیزن 7 کا آغاز کریں. اس دفعہ ہم نے ٹائم بھی تھوڑا سا جلدی سٹارٹ کیا ہے تاکہ سردیوں کا موسم جو ہے اس کی دھند کا مسئلہ ہمارے سامنے نہ آ سکے. پچھلے سال ہم نے کافی پرابلمس فیس کیے ہیں, تو اس دفعہ ہم نے تھوڑی لیگ جلدی سٹارٹ کی ہے تاکہ ہم اس کو ٹائملی جو ہے وہ اس کا اختتام بھی کر سکیں اور انشاءاللہ اختتامی تقریب پہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو اسی منعقد کریں گے جس طرح ہمارے ساتھ کرتے ہیں. میں دعوت دوں گا جناب حافظ احسان صاحب کو کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور اپنے مہمان گرامی کو فردن بلائیں اور ان کا خطاب کا سلسلہ اسٹارٹ کریں. بہت شکریہ محترم راجہ فرشاد کینی صاحب اپنے مہمان گرامی کو ویلکم کر رہے تھے اور JCL کا آفیشیل سانگ آپ کی سماعتوں کے حوالے اور بریفنگ دے رہے تھے. یہاں پر ایک اور بھی آپ اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ JSB کے نام سے پلے اسٹور پر ایپ بھی بن چکی ہے. آپ وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی اچھی ریٹنگ بھی دیں اور وہاں پر جتنے بھی اس کی اپڈیٹس ہیں کھیلوں کے حوالے سے اور اسکیجولز وغیرہ تمام تفصیلات وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ابھی سب سے پہلے تو JCL کا آغاز ہوا تھا, اس کے ساتھ پچھلے سال غالباً ہاکی بھی ساتھ شامل ہوئی تھی اور فٹ بال جب کہ نہیں تھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ تمامی احباب کی بھرپور تالیوں میں JHL
जेलम हॉकी लीग, उनके चंद अहबाब के नाम पुकारूंगा। आप भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए और उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया और जेहलम स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर जो है वो इस हमारी खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। मिर्ज़ा आफ्ताब बेग साहिब, भरपूर तालियां। जेहलम हॉकी लीग से हसन जहांगीर साहिब, मोहतरम सगीर इकबाल साहिब, मोहतरम तारिक महमूद साहिब, मोहतरम फराज डार साहिब और मोहम्मद सलीम साहिब। भरपूर तालियां जेहलम हॉकी लीग के लिए जो कि हिस्सा बने JCL का और जेहलम फोरम स्पोर्ट्स बोर्ड का, और उनके साथ ही जेहलम फुटबॉल लीग JFL जिनके प्रेसिडेंट हैं मोहतरम चौधरी अजहर साहिब। भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए और वेलकम भी कीजिए जो कि पहली मर्तबा इस साल जो है वो इस सीज़न का हिस्सा बन रहे हैं, सीज़न 7 का। जनरल सेक्रेटरी हैं JFL हाजी कमरान साहिब, भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और मोहतरम भट्ट साहिब और इनकी पूरी टीम जेहलम फुटबॉल लीग, भरपूर तालियों से इनको वेलकम करते हैं जी। JCL प्रीमियर सीजन 7 के अंदर आपको दिल की अथा गहराइयों से और JCL और जेहलम फोरम की पूरी टीम की जानिब से दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। माइक पर दावत सुगंध पेश करता हूँ मोहतरम हारून खटाना साहिब, तशरीफ लाएंगे भरपूर तालियों की गूंज में और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेहलम फोरम हमने काफ़ी लोगों को तो पता है बेसिकली, लेकिन कुछ जो नहीं आए हैं स्पेशली यंगस्टर्स, इस 7 ईयर्स पहले हमने इनिशिएटिव लिया था मैनचेस्टर UK में। तो बेसिकली हम देखें हर बंदा अपनी कैपेसिटी में या अपने लिए तो करता है, तो ये सिर्फ हमने इनिशिएटिव लिया था जेहलम की आवाम के लिए, यंगस्टरों के लिए, हर एक के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो जेहलम के लिए करें। इसके जो फाउंडर्स मेंबर्स मैं स्पेशली रियाज कोंडर साहब का जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, ये उनका विजन था और उनकी बड़ी मेहनत है। जैसे आप आज बैठे हुए हैं तो ये इतना इजी नहीं है, इसमें बड़े हिकअप्स आते हैं, बड़े इश्यूज थे, लेकिन हम उनसे निकले हैं। कुछ आए, हमें ज्वाइन किया, चले गए, कुछ हमारे साथ अभी भी शामिल हैं। अब काफ़िला बनते बनते इंशाल्लाह हम सिर्फ UK में नहीं है, हर शहर की UK में है और उसके अलावा पूरी दुनिया के हर शहर में तकरीबन, और इंशाल्लाह हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे। और डे बाई डे हम मिडल ईस्ट में हैं, हम कनाडा में हैं, हम अमेरिका में हैं, हमारे फ्रांस में, एवरी कंट्री में जो है ना वो बेसिकली मेंबर्स हैं और सिर्फ जेहलम के बंदे हैं इसमें, बेसिकली हम आउटसाइड नहीं देते। तो ये रियाज कोंडर साहब की बड़ी इसमें मेहनत है, वो बड़ा इनका एक विजन था जो हम इंशाल्लाह लेकर आगे जा रहे हैं। दूसरा जेहलम फोरम के कई हिस्से हैं, ये स्पोर्ट्स विंग एक इसका एक विंग है, बेसिकली इसमें मेडिकल है, एजुकेशन है, स्पेशल नीड्स हैं किड्स, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। फ्री एम्बुलेंस है, हमने मेडिकल सेंटर इधर बनाया हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली अपने यंगस्टरों को कि हमारी फेसबुक पर जाएं, हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें तो आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। हम आपसे पैसे नहीं मांगते, ना हमें पैसे की आपकी ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ आप आके हमारी एक्टिविटीज़ देखें और जो भी आप उसमें टाइम दे सकते हैं प्रैक्टिकली वो आप हमारे साथ तावन करें। दूसरा मैं स्पेशली राजा ताहिर साहब और उसके अलावा पटी साहब, मतलूब साहब, इनको स्पेशली इनका स्पोर्ट्स विंग जिस तरह इन्होंने चलाया है और जिस तरह इन्होंने अपने मेहनत से ये काम किया है, तो मैं इनको कहता हूँ कि आप इंशाल्लाह अगले साल इसको और थोड़ा सा बेटर करें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप इसमें बच्चियाँ भी लेकर आएँ, वुमेन स्टेशन इंडोर हम उनके लिए कुछ करें और इसके लिए इनिशिएटिव दें अपने यंगस्टरों को, उनकी माली मदद भी करें और इसको थोड़ा सा आप और एक्सपेंड करें। स्पेशली पटी साहब आपकी बड़ी मेहनत है, राजा ताहिर साहब का बड़ा विजन है, इसमें मतलूब साहब ने बड़ा काम किया हुआ है, इन लोगों ने बड़ा हमारे साथ
ताउन किया है, और स्पेशली अभी हमें फ़ारूक सिद्दीक़ साहब ने स्पोर्ट्स विंग में ज्वाइन किया है, चौधरी अनवर यकूब साहब ने ज्वाइन किया है, और इन लोगों ने भी बड़ा पार्ट अदा किया स्पेशली इसलिए। और जो हमारी जेलम की टीम है उसको भी मैं, चौधरी मोरस साहब हैं शुरू से हमारे साथ चल रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर असमत साहब, इनको भी मैं राज तस्लीम पेश करता हूँ कि इनकी बड़ी मेहनत है, किस तरह इन्होंने काम किया। हमारे दोस्त बैठे में शाहिद साहब हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन इनका भी इनमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है टाइमिंग की। और अगर आपकी कोई सजेशन है, हम इसको बेटर कर सकते हैं और इसको आप किस तरह और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी फेसबुक पर आके हमें कमेंट्स दें, आप हमें मिल सकते हैं, हमें बताएं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम जेलम के हर गांव तक ये पहुँचे। हमारा हम ग्राउंड्स पर काम कर रहे हैं और इसको एक हम चाहते हैं कि जेलम फॉर्म की स्पेशल ग्राउंड्स हैं। और उसके अलावा टीम के स्पोर्ट्स में ठीक है, हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में हम खा रहे हैं, लेकिन राजा ताहिर साहब से मैं जरूर ये करूँगा कि आप स्विमिंग में, टेबल टेनिस में और भी हमारे स्पोर्ट्स के जो भी शोबे हैं, जरूरी नहीं कि हर बंदा क्रिकेट ही खेलता है, जिस बच्चे की जो भी ख्वाहिश है उस तरह की टीमें बनाए। माली मदद इंशाल्लाह जेलम फॉर्म आपकी पूरी करेगी, और हमारे पास आपको पता है कि फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है। हमने आपको पता है तोमसा शरीफ में काफ़ी काम किया, लोगों को पता है 20 करोड़ का हमने उधर काम किया, जिनकी आउटसाइड भी हम करते हैं। और जेलम में भी अलहम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ कि स्पेशली यंगस्टर आप हमारी फेसबुक पर देखें और हमें इसमें ज्वाइन ज़रूर करें। यानी साहब आप तो वैसे भी माशाल्लाह हमारे साथ फर्स्ट डे से लगे हुए हैं, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन अगर किसी की भी कोई सजेशन है तो हमें ज़रूर दें। और राजा ताहिर साहब, भट्टी साहब, मतलूब साहब, आप ज़रूर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ईयर इसी साल हम मीटिंग करेंगे और इसको, इस विजन को आगे लेकर स्पोर्ट्स विंग्स को हम डेवलपमेंट की जेलम के बंदों के लिए जो भी हम कर सकते हैं, तो इसको मेरा दिल है और हमें कुछ सजेशन दें तो हम इसको बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएँ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने बड़ा जामे अंदाज में जेलम फोरम की कारकर्दगी के बारे में रोशनी डाली। जेलम फोरम में शामिल होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? होता है ना, बंदे के ज़हन में एक सवाल होता है कि मैं जेलम फोरम में कैसे आ सकता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि शायद हम कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन करेंगे, कुछ लोग समझते हैं कि शायद हमें किसी बंदे से मिलना पड़ेगा। सर, जेलम फोरम में शमूलियत हासिल करने के लिए हमारा सिर्फ एक ही नारा है कि अपना वक्त सदका करना। अगर आप अपना वक्त सदका करेंगे तो यकीन करें कि आपकी वो जो कंट्रीब्यूशन है और आपका जो साथ है हमारे साथ, वो ऐसी इसी तरह होगा जैसे हमारे बाकी मेंबर हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को दावत देता हूं कि आप लोग जेलम फोरम का हिस्सा बने, हमारे साथ इस खैर के काम में हमारे इस काफिले का हिस्सा बने, ताकि हम आगे जाके अपनी जेलम की टीम को प्रेजेंट कर सकें कि ये वो लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। सिलसिला बातों का चलता रहेगा। हमारे मेहमान गिरामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस वक्त स्टेज पर दावत दूंगा JFL जेलम फोरम फुटबॉल लीग, जो हमारी इस दफ़ा हमने फर्स्ट टाइम फुटबॉल लीग को ऐड किया है। जब हम निकले देखने के लिए कि चले क्रिकेट के बाद हम हॉकी और फुटबॉल को भी देखें, तो यकीन करें कि जब हमने देखा तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि इन बच्चों की इन प्लेस की सरपरस्ती की जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने JCL सीज़न 7 में जो है वो जेलम फोरम फुटबॉल लीग और जेलम फोरम हॉकी लीग जो है उसको भी हमने ऐड किया है। और जेलम फोरम फुटबॉल लीग जो है उसके रुए रवां, बल्कि मैं समझता हूँ कि जेलम में अगर आज फुटबॉल हो रहा है तो वो शायद इनकी टीम की वजह से हो रहा है। जी बिल्कुल, चौधरी अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और मैं चाहूँगा चौधरी अजहर साहब से कि वो स्टेज पर भी तशरीफ़ लेके आए ताकि हम उनसे कुछ सवालात भी कर सकें, कुछ बात भी कर सकें। अगर वो मौजूद नहीं है तो मैं कामरान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लेकर आए उनके बिहाफ पर। आपकी भरपूर तालियों में जनरल सेक्रेटरी हैं फुटबॉल लीग के, हमारे साथ तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं जनाब कामरान साहब, और अपने ख़ैरात से का भी इज़हार करेंगे और आपको बताएंगे फुटबॉल के हवाले से कि जेलम में क्या क्या हर्डल्स फुटबॉल के हवाले से इनको आती हैं, जिसके सिलसिला में जेलम फोरम की टीम जो है इस वक्त इनके साथ खिलाफ कर रही है। ये जो पहले क्रिकेट का सीज़न करवा रहे थे, अभी इन्होंने फुटबॉल को भी इसमें शामिल किया,
जेलम में फ़ुटबॉल की इस वक्त तकरीबन 38 रजिस्टर्ड टीम है। हर टीम किसी न किसी तरीके से अपना ग्राउंड सालाना उसकी पेमेंट करके उस पर खेल। इसकी जो रियासत लेवल पर कोई सरपरस्ती नहीं थी। आपको सबको मालूम होगा जो फीफा फेडरेशन था उसने पाकिस्तान को पहले बैन किया हुआ था। अभी थोड़ी बेहतरी आ रही है, तो ये एक जो JFL की तरफ से प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसकी वजह से इंशाल्लाह झेलम में फुटबॉल क्रिकेट से भी ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं दोबारा एक दफ़ा रयाज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियां होनी चाहिए जो इन लोगों के लिए जो इस खेल का बेड़ा उठाए हुए हैं। जब हम मैदान में उतरते हैं तो हमें पता लगता है कि कितनी मुश्किलात हैं ग्राउंड की मेंटेनेंस के लिए, कितनी मुश्किलात हैं इन प्लेयर्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, और कितनी मुश्किलात हैं इनकी किट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी तो हमने सोचा कि भरपूर तरीके में इसको स्टार्ट किया जा सके। और जिस तरह अभी आपने झेलम फोरम फुटबॉल लीग की हवाले से कामराज साहब ने बता रहे थे, इसी तरह झेलम फोरम हॉकी लीग जो है ये भी हमने इस दफ़ा स्टार्ट की है। और आपकी भरपूर तालियों में मैं इस वक्त बुलाना चाहूँगा स्टेज पर जनाब मिर्ज़ा आफ्ताब साहब को कि वो तशरीफ़ लेकर आए और अपने हाथी के सफ़र के बारे में बताएं कि वो किस तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। इन्होंने प्रॉपर एक अपना एकेडमी बनाई हुई है इन्होंने, जहाँ पर ये बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं, हॉकी सिखाते हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब मिर्ज़ा आफ्ताब साहब। लगातार साहब उन सब की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने झेलम के प्लेयर्स के लिए ये मौके फराहम किए। और सिर्फ JCL नहीं, JHL, JFL जो चारों टीमें मेन हमारे सिस्टम में चलती हैं उनको फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रमोट किया। JCL का तो ये 7वां सीज़न था और JFL और JHL को उन्होंने अभी प्रमोट किया। मैं अकेला ही नहीं, हमारे इस हॉकी के समंदर हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं, जिन्होंने हमारे इस हॉकी को लेके आज तक काम किया। उनमें उस्ताद तारक हैं, चौधरी मुनीब साहब हैं, नवीस सफदर हैं हमारे, और बाकी भी जो रूए रवा हॉकी के हैं सीनियर प्लेयर जिन्होंने बहुत एफर्ट किया झेलम के लिए। और मैं उन सब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि झेलम में हमारे 11 क्लब हैं, 11-12 क्लब हैं। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन बदकिस्मती से वो इन हालात का शिकार है कि वसाइल का ना होना, झेलम में ट्रफ का ना होना, या एक मखसूस जो हल्का अहबाब है उसकी सरपरस्ती ना होना, उस वजह से हॉकी जो है वो पीछे है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में हमने भरपूर काम किया, न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं उनको प्रमोशन के लिए काफ़ी सारे वसाइल जो हैं वो हमने अपने तौर पे किए हैं और वो लेके आगे चल रहे हैं। और हमारे कुछ ऐसे क्लब हैं जिनके इंडिविजुअल सदर्स हैं, जिनमें उस्ताद जमीर साहब हैं टाइगर से, और सलीम साहब हैं, अपना हमारे मोहम्मद सैन साहब हैं। ये सीनियर प्लेयर हैं जो बच्चों को स्पेशल टाइम देते हैं, ग्राउंड में आते हैं। सबसे ज़्यादा मसला होता है सीनियर बंदों का ग्राउंड में आके और उनको कोच करना और उनके साथ लेके चलना बच्चों को पंक्चुअलिटी के साथ। और असर से मगरब के दरमियान का टाइम है, इसमें तमाम हजरात अपने अपने ग्राउंड में काम करते हैं। दीना से हैं हमारे एक साथी लाला जी, वो भी उधर दीना में सुपर दीना को लीड करते हैं, और आफ्ताब साहब हैं। ये सब दोस्त जो हैं कि झेलम हॉकी के लिए अपना अपना काम बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं। पटवारी साहब हैं, हमारे इधर मौजूद नहीं हैं। तो जो सरपरस्ती अभी JHL ने हमारे साथ शुरू की, झेलम फोरम ने शुरू किया है, हमारे 3 ग्राउंड जो हैं उनमें उन्होंने मेंटेनेंस में बहुत तावन किया है। हम शुक्रगुजार हैं उनके, और आने वाले दिनों में उन्होंने तमाम क्लब के लिए यूनिफॉर्म अरेंज किए हैं। और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारा छोटा सा 2 बंदों को डेलीगेशन हमारे झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाट साहब से मुलाकात हुई अगले दिन, तो उनके रेफरेंस से भी हम उनके पास जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि झेलम की हॉकी के लिए हमारे साथ तावन करें, ताकि बच्चे जो है पंजाब और पाकिस्तान लेवल तक निकलें। जो यंगस्टर हैं उनमें टैलेंट है, बहुत स्कोप है झेलम के बच्चों में। जिस तरह के भी हमारे पास मसाइल हैं हम उनके साथ बच्चों को आगे लेके चलते हैं। तो अगर आप लोगों की सरपरस्ती है, थैंक यू।
بہت شکریہ، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کے بعد بھرپور تالیوں کی گونج میں مائک پر دعوت سخن پیش کرتا ہوں محترم چودھری سکندر نواز صاحب، جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں JCL پریمیئر۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے محترم چودھری سکندر نواز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے سب مہمانوں کا شکریہ جو تشریف لائے، اور اسپیشلی ہمارے بڑے بھائی ارون پٹھانا صاحب جو کہ کل فلائٹ مس کی ہے اس ایونٹ کی وجہ سے، آپ کا بہت شکریہ۔ JLM فورم جیسے ارون بھائی نے پہلے بتایا تھا کہ جب شروع کیا ہے تو بڑی مشکلات تھی، اور الیاس گوندل صاحب ماشاءاللہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور جتنی بھی مشکلیں آئی ہیں انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا اور قافلہ بنتا گیا، اور آج JLM فورم ایک برانڈ بن چکا ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح JLM فورم سپورٹس ونگ جو ہے، اس میں راجہ طاہر صاحب اور جو مطلوب صاحب اور جمیل بٹی، ان کی کوششوں سے پچھلے 6 سال سے ابھی یہ 7واں سیزن JLM کرکٹ لیگ کا شروع ہو رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن میری کچھ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے مشورہ ہوتا ہے باقی جو بھی معاملات ہیں، لیکن میں فزیکلی بہت کم شامل ہوتا ہوں۔ آج پہلی دفعہ اس ایونٹ میں شامل ہوا ہوں، تو انشاءاللہ اس سال ہاکی اور فٹ بال کا بھی جو ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے سیزن میں بیڈمنٹن، کبڈی اور جتنے ہمارے لوکل گیم ہیں ان سب کو، والی بال، سب کو شامل کیا جائے۔ تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور JLM فورم کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بچوں کے لیے مہیا کیا۔ اگر آپ کے بچے صحت مند ہو تو اس سے ان کی ہر قسم کی جو ہے فضول جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے وہ بچ جاتے ہیں اگر وہ کھیل میں ہوں۔ تو بچوں کو گھروں سے نکال کے، اور یہ سوشل میڈیا پہ ابھی اس طرح کی کمپینیں چل رہی ہیں اور نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، کھیل ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کے ذہن کو، میں خود بھی کھلاڑی ہوں، ابھی بھی کھیلتا ہوں، فٹ بال بھی کھیلتا ہوں، بیڈمنٹن بھی کھیلتا ہوں، تو جب کھیل کے میدان سے نکلتے ہیں تو بالکل فریش ہوتے ہیں، بالکل جیسے بندے کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے نا، پرانی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو کھیل بڑا ضروری ہے، اور آپ سب بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو گراؤنڈوں تک لائیں۔ باقی جس کو جو بھی کمی ہو کسی قسم کی، وہ JLM فورم سپورٹس ونگ سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ اس کی ہر کمی کو پورا کریں گے، چاہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، چاہے اس کو کٹ کی ضرورت ہو، اور کچھ کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سپورٹس ونگ کو مزید ترقی دے، اور یہ JLM کے نوجوانوں کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں۔ اسپیشلی بہت ساری دعائیں الیاس گوندل صاحب کے لیے جنہوں نے یہ گلدستہ اکٹھا کیا، اور آج ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ ان کے بعد اسٹیج پر دعوت دوں گا، تشریف لائیں گے محترم غلام رسول صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں JCL پریمیئر کے۔ بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے محترم غلام رسول صاحب، مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پریمیئر لیگ کا، اور میں بیہاف آف JCL کرکٹ لیگ میں اپنے تمام جو بھی پلیئرز کرکٹ کے آئے ہیں سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، تمام کیپٹن جو ادھر آئے ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک DCA کے پریزیڈنٹ جو ان کو انوائٹ کیا گیا تھا ابھی تک پہنچ نہیں سکے، میں ان کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ اس دفعہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا JCL تو آلریڈی ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ DCA کے ساتھ مل کے ہم JCL اور DCA ایک بہت اچھا ٹورنامنٹ آرگنائز کر رہے ہیں، اور اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز بھی ہو چکا ہے، اور میں JLM DCA کے پریزیڈنٹ اور اس کے جتنے بھی مینجمنٹ ہے اس کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ساتھ ہمیں موقع دیا اور ہم یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहिब, जनरल सेक्रेटरी JCL प्रीमियर, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आप तमाम अहबाब की भरपूर तालियों की गूंज में माइक पर मुलतविस हूँ मोहतरम चौधरी गुलाम अहमद ज़मुर्द साहिब तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए चौधरी गुलाम अहमद ज़मुर्द साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन काबिल एहतराम हज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। बातें तो बेशुमार हैं करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है वो ये तीन लोग जो जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, राजा ताहिर रज़ा, जमील भट्टी और चौधरी महबूब गुजर, सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है ये इनकी है। स्पोर्ट्स विंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि झेलम फोरम के तो बेशुमार शोबे हैं, बेशुमार हिस्से हैं। तो आज क्योंकि हम स्पोर्ट के हवाले से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये इतना आसान काम नहीं है, स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं वहाँ से आकर, जिस तरह जमील भट्टी हैं, दूसरे दोस्त हैं, यहाँ आकर अपना एक लोगों को मिलना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ तावन करना, ग्राउंड के हवाले से बातें करनी, मीटिंग्स करनी, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह बड़ी कोशिश के बाद यहाँ पर ये पहुँचे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो इसके हवाले से पाकिस्तान में, झेलम में बेशुमार टैलेंट है हमारे पास, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो टैलेंट को हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। देखिए, जितना भी बच्चा, जितना भी वो प्लेयर हो, लेकिन उसे अगर प्रैक्टिस का मौका ना दिया जाए, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो तब होगी जब आपके पास ग्राउंड होंगे, आपके पास किट होगी, आपके पास शूज़ होंगे, आपके पास कोई जगह होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो झेलम फोरम स्पोर्ट्स विंग जो है वो मुहैया कर रहे हैं। तो मैं जाते हुए सिर्फ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे भाई जो है आबू खटाना साहब, उनको रिसेंटली हम सब ने उनको प्रेसिडेंट ऑफ UK सारी ब्रांचों का प्रेसिडेंट बनाया है। तो उनके लिए तालियां प्लीज। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके हाथों पे पड़ी है, क्योंकि झेलम फोरम जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। तकरीबन हमारी बेशुमार, मुझे तो गिनती भी नहीं याद कि कितनी ब्रांचें हमारी हो गई हैं अभी UK में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, मिडिल ईस्ट में। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी झेलम के लोग रहते हैं उनको इकट्ठा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, और जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज़ का हो, या कोई भी हो दूसरा मसला, वो इकट्ठे होकर इस पर काम किया जाए। तो पहले भी जिक्र हो चुका है, लिहाज गोंदल का ये आइडिया जो था ना, ये झेलम फोरम का, दो हम सारे उसमें इकट्ठे थे, लेकिन जिस बंदे ने इन्विजिज किया था ये आइडिया, जिसने ये तख्लीक किया था आइडिया, वो थे इलियास गोंदल। और उसके बाद हम सारे लोग इसमें शामिल हुए, और आज माशाल्लाह देख लें कि झेलम फोरम का पूरी दुनिया में नाम है। तो मुझे उम्मीद है इसी तरह इंशाल्लाह झेलम फोरम काम करती रहेगी, स्पोर्ट्स में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में, एजुकेशन में, और इंशाल्लाह हम आगे चलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मोहतरम चौधरी गुलाम अहमद ज़मुर्द साहिब, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज की इस खूबसूरत तकरीब में JHL के पैटर्न इन चीफ मोहतरम चौधरी अनवर यकूब साहिब, जिनकी बेशबहा खिदमात हैं, और उनको हम वेलकम भी करते हैं और उनको मिस करते हैं, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए आज की तकरीब में शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि एक मरतबा भरपूर तालियाँ बजाइए मोहतरम चौधरी अनवर यकूब साहिब, जो कि UK में आज की इस ओपनिंग सरमनी के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए शामिल हैं। माइक पर दावत दूंगा इनके बाद मोहतरम जमील भट्टी साहिब, जो कि प्रेसिडेंट हैं झेलम फोरम स्पोर्ट्स बोर्ड के। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब जमील भट्टी साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने सब मेहमान ग्रामी जो आज तशरीफ़ लाए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर
ان کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے زیادہ شکریہ ہمارے ارون بھائی کا جو اسپیشل آل دا وے انگلینڈ سے ہمارے سروس پروگرام کے لیے تشریف لائے. اور ابھی تک اس دھوپ میں عادی تو نہیں ہے وہ, لیکن ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر اسمت جاوید صاحب اور سب دوست جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور اس محفل کی رونق کو آپ نے دوبارہ کیا. سب سے پہلے تو جی میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے جیلم فورم کا, جس کی وجہ سے آج سب لوگ یہاں موجود ہیں. کیونکہ اگر جیلم فورم نہ ہوتا تو جیلم فورم اسپورٹس بھی نہ ہوتا. سو اس لیے میں سب سے پہلے, باقی تو ساری باتیں الحمدللہ ارون صاحب نے اور وہ صاحب نے کہی ہیں, لیکن تھوڑا سا ذکر میں کرتا چلوں گا جو ہمارے پروجیکٹ ہوئے ہیں اور جو پروجیکٹ ہم اس وقت کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا جی, چھوٹے چھوٹے کام تو ہم لوگ کرتے رہتے تھے پہلے 2-3 سال, لیکن جس سال 3 سال پہلے جو راجن پور میں ایک فلڈ آیا تھا پنجاب میں, جس میں بہت ساری تباہی ہوئی تھی سندھ میں اور اپر پنجاب میں, اس کی میٹنگ میں ہم لوگوں نے یہ پھر فیصلہ کیا تھا کہ وہاں جا کے, کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اور یہی وقت ہے کہ وہاں کے ان لوگوں کی مدد کی جائے جو واقعی تباہ حال ہیں. تو اس وقت ہماری ٹیم فرق صدیق صاحب کی نگرانی میں پاکستان آئی تھی اور الحمدللہ انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھرپور کام کیا. ہم نے تقریباً 18 کروڑ کی کثیر لاگت سے وہاں پہ تقریباً 500 گھر جو ہے وہ جیلم فورم نے بنائے. اس کے علاوہ پانی کا وہاں بہت مسائل ہے جی. ہم لوگ, ہماری ٹیم جب وہاں گئی تو وہ یقین کریں کہ اتنا کڑوا پانی تھا کہ وہ وضو بھی ٹھیک سے اس طرح نہیں کر سکتے تھے. تو الحمدللہ جیلم فورم نے وہاں پہ 10 سے زیادہ جو واٹر فلٹریشن ہے یہ لگوائے. اور اس کے علاوہ اچھا وہاں کا فلٹر پلانٹ وہ جیلم جیسا نہیں ہوتا کہ 60 فٹ پہ جا کے پانی آ جاتا ہے اور آپ بنا دیتے ہیں 2-3 لاکھ میں کام ہو جاتا ہے. وہاں کا جو فلٹر پلانٹ ہے جی, اس کے لیے آپ نے کورا بھی بنوانا ہے, اس کو مشینری بھی آپ لے کے آنی ہے. 250-300 فٹ کی ڈیپ گہرائی میں جا کے پانی آتا تھا. تو وہ تقریباً ایک پلانٹ جو ہے وہ 10-12 لاکھ روپے سے بنتا تھا. تو ہم نے وہ تقریباً کروڑ روپے سے زیادہ اس پانی پہ خرچ کیے. اس کے علاوہ ہم نے ہینڈ پمپ, جو کہ اس آبادی بہت دور دراز جاتے تھے وہ لوگ پانی لینے کے لیے, جانوروں کے لیے بھی, پینے کے لیے بھی, ان کے گھروں میں ہر جو وہاں پہ ایک ولیج ہوتا ہے اس کے باہر ہم نے ہینڈ پمپ لگا کے دے دیا ان کو, تاکہ ان کو دور دراز نہ جانا پڑے. اپنے گھر کی ضروریات کے لیے پانی ان کو وہیں سے مل جاتا تھا. اس کے بعد سر ہم نے ایک ایمبولینس کا بندوبست کیا, ڈاکٹر ہائر کیے. اور کیونکہ وہاں پہ طبی مسائل بہت زیادہ تھے, سیلاب کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پھیل گئی تھیں, تو الحمدللہ پورا 1 سال ہم نے ایمبولینس ڈاکٹر ہائر کیے جو لوگوں کی ڈور ٹو ڈور جا کے انہوں نے طبی سہولیات جو ہیں وہ لوگوں کو دی. آپ یقین کیجئے کہ ہر روز کا تقریباً 60-70-80 ہزار روپیہ, 1 لاکھ روپیہ اس ایمبولینس کا صرف خرچ ہوتا تھا. اور پورا 1 سال ہمارے جیلم فورم نے وہاں کام کیا. تو جب وہاں کا کام ہم نے دیکھا کہ اب الحمدللہ وہاں سب ٹھیک ہے, تو ہمارے جو ایکس لارڈ میئر ہیں آبا چوہان صاحب, جو جیلم فورم کے ممبر بھی ہیں, ان کا ذکر بھی بہت ضروری ہے. انہوں نے کسیال میں, یہ دینا سے تقریباً کوئی 10-15 کلومیٹر سائڈ پہ ہے, پھوکھانا ٹینڈ کی سائڈ پہ, انہوں نے اپنی وہاں پہ جو زمین تھی, مکان بنے ہوا تھا, وہ جیلم فورم کو ڈونیٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہاں کے علاقے میں بہت زیادہ مسائل ہیں, طبی تو بالکل بھی نہیں ہے, لوگوں کو دور دراز سے آنا پڑتا ہے دینا جانے کے لیے, تو اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں. آپ کو پتہ کہ اس مہنگائی کے دور میں لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے. تو ہم نے وہاں پہ ایک میڈیکل سینٹر بنایا ہے. آپ یقین کریں کہ 1 سال میں تقریباً سے 4 سے 5 کروڑ روپے ہم لوگ وہاں پہ خرچ کر چکے ہیں. اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ صرف 200 روپے میں اپنی پوری جو طبی ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے, ڈاکٹر پروفیشنل ہمارے پاس, وہ ان کو دکھاتے ہیں اور 200 روپے میں اپنی فری میڈیکل جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ فرق صدیق صاحب کا ہم یہ کریڈٹ دیتے ہیں ان کو کہ یہ کسیال سینٹر کا بھی انہوں نے ہی پورا انتظام جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے اور وہی اس کو چلا رہے ہیں. تو ان کا بہت بہت شکریہ. کے حوالے سے ہم نے اپنے پروجیکٹ آپ کو بتا رہا تھا میں
क्योंकि जेलम फोरम का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे फर्स्ट टाइम इस महफिल में शरीक हो रहे हैं। तो उसके अलावा पानी के मैं ये बताना चाहूँगा जी, दीने के जो हमारे सलीम अनवर किसाना साहब हैं, हाजी सफदर साहब हैं, जो उनकी टीम है, तहसील स्वावा और दीना में दूर दराज तक वो जाते हैं और पानी के लिए हमें वो एप्लीकेशन देते हैं। तो हमने तकरीबन पिछले 2 साल में वहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 142 से ज़्यादा 142 से ज़्यादा पानी के प्रोजेक्ट किए हैं हमने। तो उसके अलावा मोबिलिटी सर्विसेज हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें जो हमारे मजदूर लोग हैं जी, उनके लिए ज़रूरी था कि हमको लिए भी कुछ काम करें, क्योंकि ये बड़ा निगलेक्टिंग एरिया है हमारा। सो उनके लिए भी हम व्हील चेयर, उनकी मोबिलिटी के लिए जो जो ज़रूरियात होती हैं वो भी हम मुहैया कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जी मैं राजदार साहब का, जिनका ये विजन था स्पोर्ट्स विंग का, सो हम उसको लेके चल रहे हैं पिछले 6 साल से। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। आज क्रिकेट सीज़न के अलावा फुटबॉल और हॉकी भी हमारे साथ है, बैडमिंटन है, मज़ीद भी स्पोर्ट्स को हम इंशाल्लाह अगले साल वॉलीबॉल वगैरह को भी शामिल करेंगे। सो इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मैन वो हमारे साथ जेलम फोरम की अम्ब्रेला के नीचे वो खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जेलम फोरम का और स्पोर्ट्स विंग का कि वो बच्चों के साथ लेके चल रहे हैं। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ाहिद भट्ट साहब का, आपने बहुत टाइम निकाल के वो हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं, और भी सब दोस्त जो हमारे साथ आए हैं जी, आज बैठे हैं इधर, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि टाइम अब ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जी कि आपकी भरपूर तालियों में जेलम फोरम स्पोर्ट्स विंग के लिए मैं बुलाता हूँ राजा ताहिर साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरी टाइम मुझे ये कहना पड़ता है कि दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ख्वाब से कम नहीं है कि आज हमारे जन्म के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इसके अलावा ये जो तीनों स्पोर्ट्स हैं हमारे अंडर हैं एट द मोमेंट, इनमें जो प्लेयर खेलते हैं ये बाकी स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बैडमिंटन है, एथलेटिक्स है, मैराथन है, इन सब में इन्वॉल्व हैं। तो मैं यकीन जाने कि ये मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे सब के लिए एक ड्रीम है, और स्पेशली इस ड्रीम को मैं या कोई भी अकेला बंदा इसको पाए तक नहीं पहुँचा सकता। इसमें सब हमारी टीम जेलम फोरम स्पोर्ट्स बोर्ड की, जो यासगोदर साहब की, और जितने भी आज हमारे साथ थे, स्पेशली जो अपना अरुण अफजल खजाना साहब मौजूद हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं मतलब ये सबसे बड़ी शख्सियत जो है, ये एक हमारी जेलम फोरम यूके के अपना हमारे लिए एक बड़ी आनंद की बात है कि आप इधर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। और इसके बाद आज जो प्रेजेंस हैं वो सबसे ज़्यादा हॉकी और फुटबॉल की है। मैं क्रिकेट की तारीफ नहीं करूँगा आज, क्योंकि मैं आज मतलब क्रिकेट की जो अपीयरेंस इधर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हॉकी और फुटबॉल के लिए भरपूर तालियां बजा रहा हूं। ये मैं अपना जो गुस्सा है या नाराज़गी है ये बात मैं निकालूंगा JCL वालों के ऊपर। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप इधर आए हैं। यकीन जाने कि ये बहुत बड़ी आनंद की बात है, इस गर्मी में आके धूप में बैठ के ये जो आप इधर बैठे हैं ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि क्रिकेट जो है जूनियर JCL जूनियर ये हमने 4 साल पहले स्टार्ट की थी, और इंशाल्लाह इनका जो सीज़न 4 है, जैसे कि अपना हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनको मैं अर्ली ऑन एक्सप्लेन कर रहा था कि हमने जूनियर लीग स्टार्ट की हुई है। इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम JHL और JFL वालों के साथ मिल के इंशाल्लाह फुटबॉल और हॉकी की भी जूनियर्स लीग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये हमारी पनीरी है और इसको इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे, और आने वाले टाइम पे ये ही इंशाल्लाह हमारे जेलम को स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला, इस प्रोग्राम को कामयाब किया, और आज से ऑफिशियल तौर पे ये सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बताते चलूँ कि 3 नवंबर को इंशाल्लाह बैडमिंटन का सीज़न भी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो 3 नवंबर को इंशाल्लाह हमारा बैडमिंटन भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसका सीज़न 1 होगा। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया मोहतरम राजा ताहिर रज़ा साहिब, चेयरमैन JCL प्रीमियर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। माइक पर मुल्तमिस हूँ प्रेसिडेंट जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहतरम जाहिद भट्ट साहिब तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जाहिद भट्ट साहिब, प्रेसिडेंट जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों का दिल से सलाम कबूल हो। बहुत खुशी की बात है कि आज जेलम फॉर्म ने चैम्बर को भी याद रखा और बुलाया, और यकीन माने जब भी कोई जेलम का नाम आता है तो बहुत खुशी होती है हमें। तो इंशाअल्लाह ताला जेलम फॉर्म्स के साथ चैम्बर का साथ रहेगा, और जहाँ तक ये इवेंट चलते रहेंगे, जहाँ भी हमें आवाज़ देंगे बुलाएंगे, हम इंशाअल्लाह इनके साथ खड़े हैं। ये खुशी की बात ये है, ये देख लें पहले ये क्रिकेट का करते थे, अब ये माशाल्लाह हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन भी आ गई है। इंशाअल्लाह फ्यू ईयर्स में इंशाअल्लाह और भी गेमों ये लेके आएंगे। ये हमारे जेलम के लिए बहुत एजाज़ की बात है। ऐसे प्रोग्राम जो माशाल्लाह हमारे भाई लियाज और भाई हारून खटाना ये सब कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने जेलम के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पैदाइश, हमारा ये सारा कुछ जेलम ही है। हम यहाँ पे जितना बिज़नेस करते हैं, कमाते हैं, और मैं समझता हूँ ये हमारा इस जेलम का हक है कि हम जेलम की आवाम पर भी लगाएं, स्पोर्ट्स पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं। तो ये हमें इस चीज़ पे दिल खोल कर चलना चाहिए सबको। तो आप सब साथियों का, खिलाड़ियों का, स्पेशली 2000 खिलाड़ी माशाल्लाह जेलम में बहुत ज़बरदस्त तादाद है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये 2 से 4, 4 से 8 होगी इंशाल्लाह। तो इन सब खिलाड़ियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये अच्छे गेम परफॉर्म करेंगे, और आप सब साथियों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया। आप सब मेरे दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद भट्ट साहिब, प्रेसिडेंट जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। माइक पर मुल्तमिस हूँ डॉक्टर अस्मत जावेद साहिब, जेलम फोरम की जानिब से तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए मोहतरम डॉक्टर अस्मत जावेद साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम फोरम के बारे में डिटेल डिस्कशन हुई, सब दोस्तों ने, भाइयों ने प्रॉपर उसके प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। मैं यहाँ सिर्फ एक शख्सियत का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका नाम राजा ताहिर है। जेलम में आपने देखा होगा MLA बनते हैं, MPA बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, नाज़म बनते हैं, मैं खुद भी बना था, लेकिन ख़त्म हो जाते हैं। ये सारे टेम्परेरी नाम हैं, लेकिन जो कुछ लगातार ये स्टार्ट लिया है कि जिस लेवल पे स्पोर्ट्स को ये बंदा ले आया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारा लाइफ टाइम स्पोर्ट्स चेयरमैन बन गया। लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है, अपनी औलाद को पीछे सपोर्ट करते हैं, उनको वहाँ बुलाते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि वापस इस छोटे शहर में ना, उनके बच्चे भी इस छोटे शहर को पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो लोग जो कि वहाँ भी साहिब हैसियत होने के बावजूद स्टिल अपने ख़ानदान को, अपने कब्रिस्तान को और अपने अवाम को नहीं भूलते। यही असली जेलमी है। मैं समझता हूँ कि ये जेलम फोरम में स्पेशली इलियास गोनल साहब ने एक ऐसी बुनियाद रख दी है कि वो काम जो कि असल में गवर्नमेंट के थे, ये स्पोर्ट्स गवर्नमेंट का काम है। मुझे याद है आज से 60 साल पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ से रशीद दुनिया, वहाँ से लई पाकिस्तान की हॉकी टीम के सेंट्रल फॉरवर्ड बने थे। उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है, और अब मैं इंशाल्लाह, मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह रजा ताहिर की ज़ेर सरपरस्ती इंशाल्लाह जेलम के बच्चे पाकिस्तान की टीम में जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया
डॉक्टर असमत साहिब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। सामईन जुड़कर भरपूर तालियों की गूंज में लास्ट स्पीच मियां शाहिद फरीद साहब को माइक पर दावत दे रहा हूं, तशरीफ लाएं, जो कि मैनेजमेंट कमेटी हेड हैं JCL स्पोर्ट्स बोर्ड के। तशरीफ लाएंगे मियां शाहिद फरीद साहब भरपूर तालियों की गूंज में और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं भी अपनी तरफ से तमाम मेहमान हज़रात, खिलाड़ियों और मेहमानों का वेलकम करता हूँ। आपने इतनी मसरूफियत से अपना वक्त निकाल कर शुक्राए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथियों ने आपसे खिताब किया है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं और इंशाअल्लाह आगे भी होती रहेंगी। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ कड़वी बातें करने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है, शायद इसलिए आखिरी स्पीच रखी है कि चले इसके बाद प्रोग्राम खाने की तरफ जाएगा। कुछ इल्ज़ामात हैं JCL पे ना, उनका जवाब देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं मैनेजमेंट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी की एडवोकेट की हैसियत से ये कहा जाता है कि जी JCL यहाँ से पैसे बनाता है, JCL पैसे कमाता है। तो मेरा ओपन चैलेंज है, खिलाड़ी बैठे हुए हैं, फुटबॉल वाले, हॉकी वाले तो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, क्रिकेट वाले माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं। कोई बंदा, मेरा चैलेंज है और मैं बड़े इज़्ज़त से कहूँगा कि वो बंदा उठे और साबित करे कि JCL ने किसी से एक पैसा भी लिया हो। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं राजस्थान ताहिर साहब को ये कह रहा था कि लोग बातें पीछे पीछे करते हैं, चले। तो एक और इल्ज़ाम हम पे है कि जी आपने लड़कों से वादा किया था कि आप जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया JCL 6 में, आप इनको UK लेके जाएंगे। तो ये आपने झूठा वादा किया था, बंदे तैयार थे। तो मेरे खिलाड़ी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। फिर मेरा चैलेंज है कि हमने 9 बंदे शॉर्ट लिस्ट किए थे, उसमें से 4 हमने सेलेक्ट किए थे। कोई एक बच्चा इस काबिल नहीं था कि उसका केस प्रिपेयर किया जाए। मसलन बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जॉब का लेटर नहीं है, टीम के साथ कमिटमेंट नहीं है। तो अब ब्रिटिश एम्बेसी की जो स्टैम्प है हमारे पास तो नहीं है ना। तो हम उस केस में, बल्कि खिलाड़ी ने भी कहा कि मुझे आप जाने दें, मैं वहीं पे जाके गायब हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब फिर मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथी बैठे हुए हैं, कप्तान बैठे हुए हैं, सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट वाले बैठे हुए हैं। कोई एक बंदा उन 9 में से कहे कि मेरा केस प्रेजेंटेबल था और आपने पेश नहीं किया। जी कोई है? इसलिए इसको टेक्निकल बुनियाद पे हमने इसको डिसकंटिन्यू किया है साल से, कि बाकी उसमें टेक्निकल्स इन्वॉल्व हैं। वो स्टैम्प वीज़ा हमारे इख्तियार में नहीं है और ये फिर रॉन्ग इंप्रेशन जाता है, इसलिए इस साल हमने इसको ख़त्म कर दिया। हमने इनामात की शक्ल में इसको कैश अनाउंसमेंट और इंसेंटिव जो है ना वो हम इंशाल्लाह देंगे। कितने इनामात हैं, क्या इंसेंटिव हैं, इंशाल्लाह बोर्ड मैनेजमेंट फैसला करेगी और फाइनल जो सर्वी होगी ना उसमें आप सब लोगों के सामने उनको दिया जाएगा। दूसरा एक हवाला देना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे कैप्टन जो बैठे हुए हैं, मेरी जिम्मेदारी क्रिकेट का लगा हुआ है, हॉकी और फुटबॉल की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ वो फिलहाल खेल रहे हैं। लेकिन क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल JCL का रूल्स उनको बनाना पड़ता है। कप्तान हज़रात तमाम रूल्स प्लीज़ गौर से पढ़ें, फिर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है जिस पे आप पाबंद हैं और उसी रूल्स के मुताबिक आपके इश्यूज़ के फैसले किए जाते हैं। और JCL कोई अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेती कि ग्राउंड में कोई मिसहैप हो, कोई ऐसा सिलसिला हो जाए जिसमें इलीगलिटी का काम किया जाए, उसमें JCL मैनेजमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। ये सब जिम्मेदारी कप्तान पे लागू होगी। तो इसलिए मेरा दोबारा आपसे गुजारिश है कि आप वो गौर से उसको पढ़ें। दूसरा, आखिर में
मैंने बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट कमेटी से इस बात की इजाज़त ली है कि तनकीद करें, आप बेशक करें तनकीद, मुस्बत तनकीद यू मोस्ट वेलकम, बट नेगेटिव तनकीद जो है ना उसके लिए जब तक आपके पास फैक्ट्स और सबूत नहीं है ना तो प्लीज़ इससे गुरेज करें, क्योंकि इस दफ़ा हमने ये फ़ैसला किया है कि लोग फैसिलिटी भी ले रहे हैं, खेल भी रहे हैं, लेकिन ग्रुप्स में ना नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, अगर तो ये साबित हो गया कि वो झूठा है तो उस टीम को पेनलाइज किया जाएगा। ये बड़े गौर से सुन लें, आइदर पॉइंट्स की शक्ल में या हो सकता है कि उस टीम को टूर्नामेंट के लिए बैन कर दिया जाए। तो इसलिए प्लीज़ बिल्कुल आप तनकीद करें, हम अपने को नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स और सबूत के साथ। तो मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी, आप टाइम बहुत हो चुका है। आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ, आप तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारा JCL साहब जो है ये भरपूर तरीके से होगा और आप लोगों के काम से होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम मियाँ शाहिद फरीद साहिब, मैनेजिंग कमेटी हेड JCL स्पोर्ट्स बोर्ड, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इन अहबाब का और जेलम फोरम स्पोर्ट्स बोर्ड की पूरी टीम का कि जिन्होंने जेहलम के 1500 से 2000 नौजवानों को जेहलम के ग्राउंड्स के अंदर लेके आए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस किया। आखिर पर शुक्रिया अदा करते हुए मोहतरम जनाब राजा ताहिर रज़ा साहिब, चेयरमैन JCL प्रीमियर, मोहतरम मतलूब गुजर साहिब MD JCL, मोहतरम जमील भट्टी साहिब प्रेसिडेंट JCL, राजा फरशाद कैनी साहिब मीडिया कोऑर्डिनेटर JCL, मोहतरम गुलाम रसूल साहिब जनरल सेक्रेटरी JCL, मोहतरम मियाँ शाहिद फरीद साहिब मैनेजिंग कोऑर्डिनेटर JCL, मोहतरम सिकंदर नवाज साहिब पैटर्न इन चीफ JCL, मोहतरम खुबैब भट्ट साहिब CEO JCL। मैं चाहूँगा भरपूर तालियों की गूंज में इनका शुक्रिया भी अदा करते हुए इस शेर के साथ आज की इस तकरीब का इख्तिताम करेंगे। और जो गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरम मियाँ साहब, आपकी समातों के हवाले भी और ख़ुसूसन JCL प्रीमियर की जो इब्तदाई टीम है और बाद में जो जेलम फोरम और जितने भी दीगर अहबाब हैं जो दस्तोबादू बने, उनकी समातों के हवाले कि टिन्ना सुतदियाँ वेग के होश आया, एवें खूह ख्यालां दे गेड़ दे रहे, बड़ी भीड़ ते कोई ना कम आया, एवें अपने पराए न खेड़दे रहे, ओ ते भूत सी जालमा मक्खियां दा, जुल्फां यार दियां समझ के छेड़दे रहे, बुलिया हौसले वेग तू आशका दे, ओ डंग दिया रहियां असी खेड़दे रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह सबका हामी और नासिर।